جو ہیں آج کے کلام کی خدمت کریں گے. تو آئیے ہم خدا کے بندہ کو ویلکم کریں، بھائی عرفان کو، کہ وہ آئیں اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے سے شیئر کریں. ہاللیلویہ، آمین. مسیح یسوع کے ببرکت زندہ جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام، آپ سبوں کی سلامتی ہو. آپ کی بھی سلامتی ہو. میں امید واثق کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور بالخصوص عید پینتیکوست کے بعد کلیسیا کی گروہ کے لیے، ان کی بڑھوتری کے لیے خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہوں کے لیے روشنی ہے، آج ہم وہ سنیں گے. اور آج کا جو میرا میسج، میرا عنوان ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ پیوستہ رہے، کیونکہ مسیح سر ہے. ہاللیلویہ. ایک چھوٹی سی میں آپ لوگوں سے بات کروں گا، اور اس کے بعد خدا کے کلام میں آگے بڑھیں گے. ہم میں سے بہت سارے ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ بہن بھائی سر کی اہمیت سے واقف ہوں گے. اگر بدن پر غور کی جائے، اگر آپ سب لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں، تو اگر میرا سر آپ لوگوں کو نظر نہ آئے، اگر میرا سر دھڑ سے جدا کر دیا جائے، تو یقیناً میرے ہاتھ، میری ٹانگیں، میرے بازو ایک خوف کی، دہشت کی اور ڈر کی علامت ہوں گی. اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو یہ بھی رائگاں نہ ہوگا کہ اگر سر نہیں ہوگا تو بدن جو ہے وہ بیکار اور نامکمل ہے. آئیں خدا کے کلام سے اپنی رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں. افیسیوں کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 15 آیت مبارکہ کو خدا کے کلام سے ہم پڑھیں گے. بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر، اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں. کلام پاک کا پڑھا، سنا، سمجھا اور بالخصوص قبول کیا جانا ہم سب کے لیے بڑی برکت کا باعث ٹھہرے. میرے عزیزوں، ابتدائی کلیسیا کی بڑھوتری کی، ان کی ترقی کی اگر بات کی جائے تو وہ سر سے یعنی کہ مسیح سے جڑی ہوئی تھی، سر سے یعنی کہ مسیح سے پیوستہ تھی. جب ہم خدا کے کلام سے دیکھتے ہیں تو عید پینتیکوست کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو خدا کا کلام پھیلتا گیا، خدا کے کلام کو وسعت ملتی گئی، رسولوں پر، ڈسائپلز پر ایذا رسانیہ، ظلم و ستم بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے. لیکن باوجود اس کے کہ ان پر ایذا رسانیہ ہو رہی تھی، ان کو قتل و غارت کیا جا رہا تھا، ان پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، بجائے یہ کہ وہ ان کی تعداد کم ہو، بجائے یہ کہ کلام کی تنزلی ہو، کلام کو وسعت مل رہی تھی، اور شاگرد کلیسیا جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی تھی. ہاللیلویہ. کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح جو سر ہے اس کے ساتھ پیوستہ تھی. پالوس رسول افیسیوں کی کلیسیا کو جب خط لکھتا ہے
तो वो उनको इसी बात की तरफ रागब करता है कि तुम कलीसिया को रागब करता है कि तुम सर से यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते चले जाओ। मेरे अजीजों, हम जब देखते हैं इब्तदाई कलीसिया और मौजूदा कलीसिया, तो इनमें सबसे बड़ा जो फर्क हमें नजर आता है, इब्तदाई कलीसिया ऐसी कलीसिया जो मसीह के साथ व्यवस्था थी, मसीह के साथ जुड़ी हुई थी, जिनका सर मसीह था, वो उसके साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन मौजूदा कलीसिया ऐसी कलीसिया नहीं है। और ये बात करना भी रायगाना होगा कि इब्तदाई कलीसिया, दुआ करने वाली कलीसिया, और मौजूदा कलीसिया ईमान में कमजोर, मसीह से दूर, मसीह की तालीमात से दूर, मसीह के खौफ से दूर, मसीह के कलाम से दूर दुआ करवाने वाली कलीसिया है। जब हम खुदा के कलाम में देखते हैं रसूलों के अमाल में, उसके हम 12वें चैप्टर में जब देखते हैं, उसकी 5 आयत में जब पतरस रसूल को कैद खाना में डाला गया, तो उस वक्त कलीसिया जो मसीह में व्यवस्था थी, वो किसी कमिश्नर के पास, किसी डीसीओ के पास या किसी और अपने गवर्नमेंट के हुक्मरानों के पास नहीं गई, बल्कि वो कलीसिया जो मसीह में व्यवस्था थी, मसीह से जुड़ी हुई कलीसिया थी, वो दुआ करना शुरू हो गई। आए खुदा के कलाम से देखते हैं रसूलों के अमाल उसका 12वां बाब उसकी 5 है। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदन और जान खुदा से दुआ कर, उसके लिए बदल और जान खुदा से दुआ कर रही थी। कलीसिया जो थी वो खुदा से दुआ कर रही थी। अगर मौजूदा हालात में ऐसा हो, हमारा कोई मजहबी रहनुमा, हमारा कोई खुदा के कलाम का प्रचार करने वाला, जब वो कैद खाना में डाल दिया जाए, जब एजा रसानिया उस पर हो, तो बजाय कलीसिया खुदा के हुजूर झुककर उसकी बाजियाबी के लिए, उसकी रहाई के लिए दुआ करे, वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, दीगर हुक्मरानों के पास जाएगी, और अगर वहां से बात बन गई तो ठीक, वरना ज्यादा से ज्यादा वो जाकर स्ट्राइक्स करेंगे, वो जाकर एहतजाज करेंगे। क्यों? क्योंकि इब्तदाई कलीसिया मसीह में व्यवस्था कलीसिया थी, मसीह में बड़ी हुई कलीसिया थी, मसीह में जुड़ी हुई कलीसिया थी, और मसीह में उनकी ग्रोथ हुई थी, मसीह को उन्होंने अपना सर तस्लीम किया था। इसीलिए इब्तदाई कलीसिया पतरस के कैद खाना में पड़ने के बाद वो कलीसिया जो वो किसी के पास नहीं गए, बल्कि हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि वो दुआ कर रही थी। और जैसे वो दुआ कर रही थी, तो इसकी 7वीं आयत में लिखा है कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, जल उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। हालेलुया। इब्तदाई कलीसिया मसीह में व्यवस्था कलीसिया थी, वो दुआ करने वाली कलीसिया थी। इसीलिए मेरे अजीजों, उन्होंने बजाय किसी को
अप्रोच करने के वो उन्होंने अपने जिंदा खुदा के हुजूर झुकना मुनासिब समझा, और क्योंकि वो मसीह में जुड़ी हुई कलीसिया थी, और क्योंकि वो मसीह में व्यवस्था कलीसिया थी, और क्योंकि उन्हें मसीह के खून की पहचान थी, उन्हें इस बात का पता था कि हमारी अहमियत जो है वो इतनी बड़ी अहमियत है कि हम अपने तौर से खरीदे नहीं गए, बल्कि हमारे हमारे लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने लहू बहाया और उसने मेरी और आपकी कीमत चुका दी है। हालेलुया। उनको इस बात पर भरोसा था कि जिसने मेरे और आपके लिए खून बहा दिया है, जरूर है कि वो हमारी दुआओं का जवाब भी देगा। और दुआओं का ही जवाब था कि पतरस रसूल के पास आकर फरिश्ता खड़ा होता है और फिर वो वहां से आजाद हो जाता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर दौरे हाजिर पर निगाह करें तो हमें बहुत सारे ऐसे बहन भाई, ऐसे बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द अगर माहौल पर नजर करें, हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने नाम मसीह रखा होगा, फला मसीह, लेकिन अगर उनकी जिंदगी में देखें तो वो मसीह से पैवस्ता नहीं होंगे। अगर मसीह को कबूल भी कर ले तो चंद रोजा, चंद दिनों, चंद महीनों के लिए वो मसीह के साथ चलना शुरू होंगे और उसके बाद वो मसीह से दूर चले जाएंगे। क्यों? उनकी अफजाइश मसीह में नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा और तवक्कल ही नहीं होता कि मसीह हमारा सर है। और जिस तरह मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सर के बगैर अगर बाकी बदन की तश्कील देखें तो सर के बगैर बाकी जो बदन है और वो बिल्कुल भयानक और खौफ की अलामत है। मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी प्यारी बहनों, इसी तरह अगर हम मसीह में जड़ नहीं पकड़ रहे, अगर हम मसीह में व्यवस्था नहीं है, तो मेरी और आपकी हालत भी ऐसी भयानक हालत है, ऐसी खौफनाक हालत है, ऐसी हैबतनाक हालत है, क्योंकि हम इस बात पर भरोसा नहीं करते, हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि मसीह ने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया है। हम इस बात पर तवक्कल नहीं रखते कि हम खून से खरीदे गए हैं, और इसी वजह से हम मसीह में जड़ नहीं पकड़ते, मसीह में व्यवस्था नहीं होती। अगर हम इब्तदाई कलीसिया को देखें तो वो जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि वो दुआ करने वाली कलीसिया थी, और मौजूदा कलीसिया जो है ये वैसी कलीसिया नहीं है, बल्कि मौजूदा कलीसिया ऐसी कलीसिया है जो मसीह को अपना सर तस्लीम नहीं करती, बल्कि वो ऐसी हैबत और ऐसी खौफ की अलामत है कि जो अंधेरे में ही चली जा रही है, और दुनिया का हकीकी नूर खुदावंद यीशु मसीह उससे वो आशना नहीं है। जब हम पौलुस की जिंदगी में देखते हैं, पौलुस और सलास की जिंदगी में देखते हैं, उनको भी कैद खाना में जब डाला गया, एजरसानियों के दौर की बात है। अमाल अमाल की किताब में इसके 16वें बाब में लिखा है, अगर हम उसके 25वीं आयत को देखें तो अपने आप को इसी मुकाम पर रखकर देखिए, आप खुदा के खादम, खुदा की प्रस्तिश बंदगी करने वाले, अगर हम पर भी पौलुस की तरह ऐसी एजरसानियां की जाए, हमें भी कैद खाना की हालत में डाला जाए, क्या हम भी पौलुस की तरह अपना ईमान का इजहार करते हैं? और उसके ईमान का इजहार देखिए, उसका मसीह में व्यवस्था रहने का लाजवाब सबूत और खूबसूरत नमूना देखिए। खुदा के कलाम में लिखा है, रसूलों के अमाल उसके 16 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, आधी रात के करीब पौलुस और सलास दुआ कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। मेरे अजीजों, जो इस बात को तस्लीम करता है कि मसीह उसका सर है,
मसीह में वो व्यवस्था रहता है, मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करता है, वो किसी डर और खौफ में नहीं रहता। ऐसी ही हालत पौलुस की थी, ऐसी ही हालत सैलास की थी जब वो कैद खाना में थे। उस वक्त भी वो खुदा की हम्द कर रहे थे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, कैदी सुन रहे थे। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि यकायक एक बड़ा भूचाल आया, यहां तक के कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सब बेड़ियां खुल गई। हालेलुया। मेरे अजीजों, मसीह को जो अपना सर तस्लीम करता है वो फख्र के साथ ईमान में बढ़ता चला जाता है और फख्र के साथ मसीह में जीना शुरू करता है। ना तो याद रखिए उसको, उसकी जिंदगी में एजरसानियां उसको खुदा से दूर कर सकते हैं, ना ही उसके बुरे हालात खुदा से उसे दूर कर सकते हैं, और ना ही कोई और चीज उसे मसीह की मोहब्बत से दूर कर सकती है। इसी तरह पौलुस भी बयान करता है कि कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। जो व्यवस्था मसीह से हो जाता है उसकी हर हाल में जो उनसियत है, मोहब्बत है, वो मसीह में बढ़ती चली जाती है। खा वो तंग दस्ती में हो, खा उसके हालात कैसे ही क्यों ना हो, वो खुदावन यीशु मसीह में बढ़ता चला जाता है, मसीह में ग्रो करता चला जाता है, मसीह में रूहानी तरक्की उसकी होती चली जाती है। और ऐसी ही तरक्की इब्तदाई कलीसिया ने की। इब्तदाई कलीसिया वो जमा होते, वो दुआ करते, रफाकत रखते, रोटी तोड़ते और मसीह जब भी इकट्ठे होते मसीह का प्रचार करते, मसीह की सताइश करते, मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते। और अगर मौजूदा कलीसिया के हाल पर निगाह करें तो अगर लोग इबादत के तवज्जुह से इकट्ठे भी हो जाएं तो किसी खादम को एक खादम दूसरे खादम की सुनना गवारा नहीं करता। कलीसिया अगर इकट्ठी हो जाए तो बजाय अपने खुदा की हम्द करने के वो इधर उधर की बातों में वक्त का ज़िया करते हैं। मेरे अजीजों, यही वजह है कि मौजूदा कलीसिया एक खौफ, एक हैबत और भयानक कलीसिया की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, क्योंकि ये कलीसिया ना तो दुआ करने वाली कलीसिया है और ना ही ऐसी कलीसिया है कि जिनकी जो दुआ करे और जेल की बेड़ियां खुल जाएं और पतरस, पौलुस और सलास रिहा हो जाएं। क्यों? क्योंकि मौजूदा कलीसिया ये अपने ही फिक्रों में खुद ही फंसी हुई है। मौजूदा कलीसिया अपनी फिक्रों में, अपनी ख्वाहिशात में फंसती है, गुनाह पर गुनाह करती है, अपनी फिक्रें अपने खुदा पर नहीं डालती। और क्या ही खूबसूरत हमने खुदावंद के कलाम से खूबसूरत आयत को जिसको सुना मैं आप सबको, जो हमारी मरकजी आयत थी, जिन हमारे सामईन ने, जिन मौजजीन ने हमें लेट ज्वाइन किया है उनके लिए आज इसी आयत को मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूं ताकि वो भी मसीह को अपना सर तस्लीम करें। खुदा के कलाम में अफीसियों के खत में उसके चौथे बाब में और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर, और उसके साथ जो सर है, सर कौन है, यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं। हम जब मसीह से व्यवस्था होंगे तब ही हम रूहानी तौर पर तरक्की हासिल करेंगे। और मौजूदा कलीसिया को भी चाहिए कि वो मसीह को अपना ना सिर्फ नजात दहिंदा तस्लीम करे, मसीह को अपना सर तस्लीम करे। और जिस तरह एक बदन जो है अगर उस पर सर ना लगा हो तो वो डर, खौफ और हैबत की अलामत होता है। आज भी कलीसिया ऐसी है क्योंकि वो मसीह को अपना सर तस्लीम नहीं करती। और मैं आप सबको, मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, मेरे
अजीज सामीन मुअज़्ज़िज़ीन, मैं आप सबको इल्तिजान ये बात करना चाहता हूँ, आप सबको इस बात की तरफ राग़िब करना चाहता हूँ कि मसीह जो है वो हमारा सर है, और मसीह जो है उसके ही लहू से हम खरीदे गए हैं, और हमारी तरक्की सिर्फ उसमें व्यवस्था होने से ही है। अगर हम उसमें व्यवस्था हैं तो मेरे अजीजों, हम भी इब्तदाई कलीसिया की तरह मजबूत कलीसिया बन सकते हैं। अगर हम मसीह में व्यवस्था हैं तो हमें हमारी रूहानी अफजाइश हो सकती है, हम रूहानी तौर पर अफजाइश पा सकते हैं। अगर हम मसीह में व्यवस्था नहीं है तो मेरे अजीजों, हम गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हैं, हम भयानक दौर से गुजर रहे हैं। और आज का कलाम हमें इस तरफ राग़िब करता है कि हम मसीह जो हमारा सर है उस पर फख्र करें, उसमें व्यवस्था हो, और जिस तरह इब्तदाई कलीसिया कलाम की वुसअत के लिए काम करती थी और उनके दरमियान मोज़े होते थे, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमारी जिंदगियों में भी इज्जत और जलाल पाए, और हम सब मसीह में बढ़ते चले जाएं, हम सब मसीह के बदन को और ज्यादा बढ़ाते चले जाएं, और ज्यादा हम मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते रहे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आइए हम इस खूबसूरत कलाम के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ सिस्टर नुसरत है, मैं चाहूंगी कि वो दुआ करें। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आइए हम इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदावंद से दुआ करते हैं, उसके लिए शुक्र चाहते हैं, उसकी बरकत, उसके लिए बरकत चाहते हैं, और खुदावंद की बंदा के लिए भी खुदावंद की बरकत चाहते हैं। कुदूस कुदूस नहायत मेहरबान बाप, जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए कि मसीही ही अपनी बॉडी का सर है, मसीही सर है पूरे चर्च का। जहाँ मसीही नहीं, सर नहीं है, हेड नहीं है, वो चर्च नहीं है खुदावंद, क्योंकि चर्च को पैदाइश देने वाला मसीही ही है, जिसने अपनी जान और अपनी जानों को फिदिया देकर चर्च को पैदाइश किया है खुदावंद, और हम सबके कफारा का बायस बना ताकि हम सब इकट्ठे होके उसके नाम पर आए खुदावंद, बाप के सामने अपनी शुक्रगुजारी और अपनी फरियादें रख सके आए खुदावंद, क्योंकि उसने कहा कि मैं ही मीडिएटर हूँ, मेरे सिवा कोई बाप के पास नहीं आ सकता। तो आए खुदाम, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए कि तूने हमारी रूहानी आंखों को खोला है खुदाम। तू इस बॉडी को आए खुदाम के चर्च तेरी बॉडी है, तेरा जिस्म है, और तू यीशु नासरी उसका सर है खुदाम, कलीसिया का सर तू है बाप आसमानी, तेरा बेटा है हमारा नजात दहिंदा मसीह यीशु। हम उसी की शुक्रगुजार, उसी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, उसी के लिए, इसके तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए, कि जो तूने अपने बच्चों पर की, कि तूने अपने सारे बच्चों की इकट्ठा करने के लिए अपने बेटे का खून बहा दिया, ताकि एक चर्च की सूरत में और तेरे बेटे की बॉडी बनकर तेरी हुजूरी में आ सके। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इसके लिए, तेरे इस बड़े प्लान के लिए, तेरे बड़े मंसूबे के लिए, कि जब हम उसके नाम से इकट्ठे होते हैं तो तेरा रूह हम पर आता है खुदावंद, और तेरे रूह को हम तेरे रूह को से भर जाते हैं खुदावंद। और आए खुदावंद, इसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अपना रूह हमें अपनी कसरत की जिंदगी दे के अपना रूह हम पर उंडेल दिया, अपने बेटे की जान कुर्बान करके आए खुदावंद। रूह कुदुस तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू यहाँ पे मौजूद है, तू हमारे दरमियान है, हमारे साथ है खुदावंद। तो इसी तरह हम सबको बरकत दे आए खुदावंद, हमारी रूहानी आंखों को खोल ताकि हम कलाम को सुने समझें, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना फल ले आए खुदाम। और आए खुदाम, जितने इस कलाम को सुने आए खुदाम, वो भी इससे बरकत पाए। हम तेरे बंदा के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिसने बड़ी खूबी से तेरे कलाम को बयान किया है खुदाम, तेरे मुंह की मीठी बातों को हमें सुनाया, हमें बताया है खुदाम। इसलिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी बरकत चाहते तो अपने बंदा को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है खुदाम। और इसी तरह हम सबको हिकमत और दनाई और हमारी रूहानी आंखें खुलना तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन।